Yes, you children, I'll be teaching you the chapter weather instruments, maps, and charts. Now, what is weather? It says weather denotes the atmospheric condition of weather elements at a particular place and time. So, first thing that you should understand is that weather is going to tell you about the then and there situation of a place at that particular point of time. So एक place or एक time मतलब it is then and there situation. The second question that you should know is what are the elements of weather. So the elements are temperature, pressure, wind, humidity, and cloudiness. Now, the organization responsible in India to measure the weather condition is the Indian Meteorological Department, IMD, the Indian Meteorological Department. Now, what is the advantages of weather forecasting? Weather forecasting can be helpful to the farmer, to the crew of ship, pilot, and the fisherman, and for the defense personals. So by now we have done a few questions. The first question is what is weather? What are the elements of weather and climate? The third question is what is the full form of IMD? Name the organization responsible for uh, recording the weather conditions of India, and it is IMD, Indian Meteorological Department. And what is the advantages of this weather prediction? It is advantages to the farmer, to the crew, to the ship, and the pilot, and to all of them. Now, what is the difference between what is weather? Here he is again trying to define it, and it says the condition of atmosphere at a given place. The same definition is being re-emphasized at a given place, time, with respect to atmospheric pressure. These are the elements: temperature, humidity, precipitation, cloudiness, and wind. So atmospheric pressure means the pressure which the air exerts on a particular area. Now, when it comes to temperature, temperature is the degree of heat that is present in the air, and humidity is the amount of moisture present in the air, and precipitation is the amount of rainfall that takes place, and clouds that are there will be a part of the cloudiness, and then it will be wind. Now, further we see weather forecasting. The predictions with a reasonable amount of certainty about the condition of weather that would prevail in 12 to 48 hours in a certain areas. So what does it says? The predictions that will be valid for the upcoming hours for day or two, they will be a part of the weather forecast. When it comes to the weather conditions of the world, it is the World Meteorological Organization, the WMD, which is responsible, and it is called the World Meteorological Organization. Now, in a surface observatory that we have, what are the things that are most important in a surface observatory? We will look at it just now. A surface observatory should be able to record the temperature. Maximum and minimum thermometer is used for that. A surface observatory should also be able to know the pressure requirement, the pressure existing in an area, the humidity in the air, the amount of cloud or the cloudiness, the speed of the wind, and the amount of rainfall that is taking place. In an observatory, that is a first class 1 observatory, the following instruments are available. One is the maximum and minimum thermometer, the
Next is the anemometer, the wind vane, wet and dry bulb thermometer, rain gauge, and the barometer. So we have got 1, 2, 3, 4, 5, 6 instruments which are essential to make the highest category or a first class observatory, which should have at least these 6 instruments for measuring the. If we look at a thermometer, thermometer in an observatory is used for measuring air temperature. The thermometers that are made in for the weather observation may be based on mercury or may be based on alcohol. And further it says that the thermometers, the most common type of thermometers are the centigrade thermometer and the Fahrenheit thermometer. Centigrade thermometer is starting from the melting point of ice, which is 0 degree Celsius, and the boiling point of water is considered to be 100 degree Celsius, and this is divided into 100 parts. The other one is Fahrenheit thermometer, and here the reading takes from 32 degree Fahrenheit to 1200 and 212 degree Fahrenheit. Maximum minimum thermometer is used for measuring air temperature. Wet and dry bulb thermometer are used to measure humidity. Yes, अगर आप ये देखें तो ये आपका विंड वेन है। इस विंड वेन में ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ ये मार्क्ड होता है और ये एक जगह पे लगा दिया जाता है। ठीक है, और जिस जगह पर ईस्ट होता है, जिस जगह वेस्ट होता है, जिस जगह नॉर्थ होता है, उस जगह साउथ होता है, उसकी ओरिएंटेशन के हिसाब से इसे लगाया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? फिक्स कर दिया जाता है। तो अब जब वो फिक्स्ड होता है विंड वेन, तो उस फिक्स्ड विंड वेन में, क्योंकि वो फिक्स्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ विंड पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। समझ में? हाँ, तो विंड वेन में उसने क्या कहा कि विंड वेन किसके लिए यूज हो रहा है? टू मेजर डायरेक्शन। लाइट वेट होता है, एक एरो हेड होता है, और हम क्या देखते हैं कि वो क्या होता है कि इट्स रिवॉल्विंग, और वो रिवॉल्व करता रहता है हवा के डायरेक्शन से, और जैसे जैसे हवा उस पर टकराती है, द एरो ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ब्लोज। तो जिस तरफ से विंड आ रही होती है, उस डायरेक्शन का पता लगता रहता है कि भाई एरो ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड ब्लोज। तो उसमें क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि जो विंड होती है उसका जो सिस्टम है वो ये है कि जो विंड होती है, इट इज ऑलवेज नोन फ्रॉम द प्लेस वेयर इट कम्स। इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि जो विंड है इज ऑलवेज नोन फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज कमिंग। जैसे अगर हम इंडिया से बाहर चले जाते हैं, तब भी हमारे को उसी जगह का नाम से हम जाने जाते हैं जिस जगह से हम आते हैं। जैसे कल्पना, शी वॉज इन अमेरिका, है ना, एन एस्ट्रोनॉट, बट शी वॉज कल्पना चावला, आई बिलीव। तो शी वॉज नोन फ्रॉम द प्लेस वेयर शी केम, एंड वॉट वॉज दैट प्लेस? दैट प्लेस वॉज इंडिया। शी वॉज एन अमेरिकन सिटीजन एंड द ओरिजिन वॉज फ्रॉम इंडिया। सो उसी तरीके से विंड के साथ होता है कि विंड का डायरेक्शन वहां से माना जाता है जहां से वो आ रही होती है, ना कि जहां को वो जा रही होती है। विंड का नाम जो होता है कहां से आता है? जहां से विंड आ रही होती है। इस चीज को हमें समझना है। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है रेन गॉज। रेन गॉज में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यू कैन सी द इंस्ट्रूमेंट। इसका एक अपर कंटेनर होता है। वी हैव गॉट दिस कंटेनर विद अस इन आवर स्कूल आल्सो। उसके अंदर एक फनल लगा होता है। उस जब बारिश होती है तो ये ऊपर से खुला हुआ होता है, तो जितनी बारिश होती है इसमें गिर जाती है। अब जब बारिश का पानी इसके अंदर गिर जाता है
तो वो पानी इसमें कलेक्ट होता है और कलेक्ट होकर इसके अंदर गिर जाता है और यहाँ भर जाता है। और ये जो बॉटल होती है इसके अंदर निशान लगे होते हैं कि कितना मिलीमीटर रेनफॉल हुई, मिलीमीटर मतलब मिलीमीटर एंड सेंटीमीटर्स, तो उसके हिसाब से हम काउंट कर लेते हैं। वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रेन गॉज। सो नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग विंड सॉरी रेन गॉज। रेन गॉज कंसिस्ट ऑफ अ मेटल सिलेंडर विद अ सिलेंड्रिकल फनल इज फिक्स्ड। द डायमीटर ऑफ द फनल इज नॉर्मली 20 सेंटीमीटर्स। तो वो 20 सेंटीमीटर्स का बना होता है। उसके अंदर एक मेजरिंग ग्लास होता है, जो बॉटल होती है वो खुद ही मेजरिंग का यूनिट में दी होती है और वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर में मेजर कर लेता है। और कहीं पर अगर स्नोफॉल होगी तो उसको वो किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले उसको वो पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको भी मेजर किया जा सकता है। स्नोफॉल को मेजर करने के लिए भी पानी के अमाउंट में मेजर किया जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया हमारे सामने। ये वन वर्ड क्वेश्चन भी आ सकता है और इसका मैं एक वन वर्ड क्वेश्चन बना के जो वीडियो डालूंगा उसके नीचे ये लगा दूंगा और सॉरी उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा होगा। उसके डिस्क्रिप्शन में क्या होगा कि जैसे ये तो अभी आपको यहाँ दिख रहा है, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। इफ यू डू नॉट हैव द बुक यू शुड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। टेम्परेचर कौन मेजर करता है? थर्मामीटर मेजर करता है। ये पूरे चैप्टर को अभी तक जितना पढ़ा है ये पूरे को कवर कर लेगा। उसके बाद थर्मामीटर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट, राइट। और फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है? बैरोमीटर। और बैरोमीटर किस में मेजर करता है? मिली बार में मेजर करता है, यूनिट, ठीक है। एयर को प्रेशर को मेजर करने का यूनिट है मिली बार, ठीक है। और विंड को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है विंड वेन। विंड वेन कार्डिनल डायरेक्शन के हिसाब से बताता है कि किस डायरेक्शन से हवा आती है। विंड वेलोसिटी मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो एनीमोमीटर होता है। विंड की स्पीड कितनी स्पीड से आ रही है, कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चल रही है। जैसे कार हम चलाते हैं तो उसके अंदर आता है ना कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, वो उसकी आती है एनीमोमीटर। और रेन के लिए रेन गॉज होता है जो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में मेजर करता है। शुरू से अब एक बार फिर से टॉपिक को देख लेते हैं। हाँ जी, अब ये रिवीजन होगा हमारा। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है कि व्हाट इज वेदर। तो वेदर इज एटमॉस्फेरिक कंडीशन विच इज देन एंड देयर। और इसके अंदर 4 टॉपिक्स हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडनेस। 4 नहीं है, 1 2 3 4 5 टॉपिक्स हैं। टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड क्लाउडनेस। और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, जो 1875 में स्टेब्लिश हुई थी कैलकाटा में, आज उसका लोकेशन कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो ये वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। वेदर देन एंड देयर सिचुएशन होती है। वर्ल्ड का वेदर मेजर करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक फर्स्ट क्लास ऑब्जर्वेटरी में मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर होता है। हमने पढ़ा था ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर एक साथ मेजर कर लेता है। एनीमोमीटर विंड की स्पीड को मेजर करता है। विंड वेन विंड के डायरेक्शन को मेजर करता है। वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। रेन गॉज कितनी रेनफॉल हुई उसको मेजर करता है। और बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है। सो थर्मामीटर 2 तरीके के बेस्ड होते हैं, अल्कोहल और मरकरी के, राइट। एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर दोनों टेम्परेचर एक साथ रिकॉर्ड करने वाली चीज है। और ये जो आपके सामने स्क्रीन दिख रहा है स्टीवनसन स्क्रीन, इसके अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया जाता है ताकि उसके ऊपर धूप डायरेक्ट ना पड़े, नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो इफेक्ट होगा वो सही नहीं आएगा। ये वेट एंड ड्राई बल्ब थर्मामीटर लास्ट क्लास में भी आपको समझाया गया था, है ना। एंड तो विद दिस वी कम बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेदर मैप्स। सो वी
वेदर मैप्स अगर हम देखें तो व्हाट डू वी फाइंड कि वेदर मैप्स रिप्रेजेंट द फिनोमेना ऑन द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट ऑन अ फ्लैट सरफेस। मतलब जब वेदर मैप बनाते हैं तो हम उसको फ्लैट समझ के बनाते हैं अर्थ को, मतलब उसमें जो हाइट का इफेक्ट है उसको कम कर देते हैं। ठीक है। और हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, क्लाउडीनेस, डायरेक्शन ऑफ विंड, ये सब जो है वेदर मैप के ऊपर दिखाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है इफ यू वांट टू राइट कि व्हाट आर द थिंग्स शोन इन अ वेदर मैप, तो आप बताएंगे टेम्परेचर दिखाया जाता है, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउडीनेस एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। ये सब चीजें एक एक वेदर मैप में दिखाई जाती हैं। अपर एयर ऑब्जर्वेशंस कैसे की जाती हैं एक पर्टिकुलर मैप में, वो जो है उसको भी उसने समझाने की कोशिश की है। और वो क्या कह रहा है कि अपर एयर ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो एरोप्लेन से, पायलट बैलून से की जाती हैं। आजकल ये सब काम सैटेलाइट कर लेती है। ठीक है। तो आजकल की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। The accuracy of today's meteorological department has increased to a great extent। और हमारी आज ऑब्जर्वेटरीज अंटार्कटिका तक में हैं। इंडिया itself has its observatory at Antarctica and other countries also। तो अब वो क्या कहता है, जो मेट्रोलॉजिकल मैप्स हैं वो अलग अलग डेटास को यूज करते हैं। सो नाउ आई विल आस्क वन ऑफ यू, वन थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट वेदर ऑब्जर्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो काम हुआ है वो है वेदर सैटेलाइट्स एंड जो लॉन्च किए गए हैं। जो वेदर सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की अपनी वेदर सैटेलाइट्स भी हैं और पूरा वर्ल्ड जो है उसके पास भी अपनी सैटेलाइट्स हैं। तो उन सब के मारे जो रिकॉर्डिंग है वो मच बेटर हो गई है। ठीक है। वेदर चार्ट्स जो होते हैं उसमें कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोडिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जो मैप्स होते हैं उसके अंदर जैसे हम देखें कि सारी की सारी सिचुएशन को लिखा नहीं जा सकता, तो इसलिए हम उसमें कोड्स को यूज करते हैं। और जो कोड्स होते हैं हमारे को समझ में आ जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको वेदर फोरकास्टिंग के बारे में आता है, तो वो उसमें जो वेदर की सारी सिचुएशन होते हैं उसको वो कोड में कन्वर्ट करके उस पर डाल देते हैं। और जो इंटेलिजेंट लोग जिनको पढ़ना आता है, आपको भी वही पढ़ना हम सिखाने की कोशिश करेंगे आज, और या जब तक थोड़ा सा चैप्टर आगे जाएगा तो आपको समझ में आना शुरू होगा कि कैसे वेदर मैप्स में क्या कौन से सिंबल्स यूज होते हैं। यस। सो यहाँ पर वो कह रहा है वेदर सिंबल्स। तो वेदर सिंबल्स जो है, वेदर ऑर्गेनाइज वर्ल्ड वेदर मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल वेदर ब्यूरोज जो हैं वो वेदर सिंबल्स को लेके बनाती हैं। और वो जो सिंबल्स होते हैं वो इंटरनेशनल होते हैं, मतलब वो सिंबल जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बना दिए तो पूरे पूरे वर्ल्ड पे अप्लाई करते हैं। समझ में? यस। हाँ। यहाँ पर वो कह रहा है कि जो क्लाइमेटिक डायग्राम है उसमें लाइंस होती हैं। ये देखो, ये लाइन है। हुँ? जो इक्वल होती है ना चीज, उसकी लाइनों को बनाया जाता है। ये देखो, अगर आप देखो ये 110 लिखा है, 110, यहां लिखा है 108, यहां 106, 104 है ना, 96, ये आपका होगा 108। तो ये जो है ये क्या है, ये इक्वल है। अब ये इक्वल क्या है, ये क्या चीज हो सकता है ऐसा, 101, तो ये जो है आपका प्रेशर ग्रेडियंट को दिखा रहा होगा। अब उस प्रेशर ग्रेडियंट को दिखाने के लिए, तो प्रेशर अगर आप देखें तो सबसे कम 108 दिख रहा है यहाँ पर और मैक्सिमम 110 दिख रहा है। 108 से कम अगर मैं देखूं तो मुझे कोई भी प्रेशर ना, 100 सॉरी 996 यहाँ पर देखो, ये उससे भी कम प्रेशर है। दिख रहा है? मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है ये सबसे लो प्रेशर है। उसके बाद ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है
तो अगर यहाँ पर लो प्रेशर है तो हवाएं इस विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। यस, वी आर बिगिनिंग। यहाँ पर मैपिंग ऑफ क्लाइमेटिक डेटा, वो कह रहा है कि ये जो मैप है, लुक एट दिस मैप, इसमें लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं ये आइसो कहलाती हैं। आइसो मतलब इक्वल। ज्योग्राफी में कई सारी आइसोज होते हैं और उन आइसोज को पेपर में पूछ दिया जाता है। 12th में भी पूछा जाता है, 11th में भी पूछा जाता है। और यहां पर ये जो मैप है ये पूछ रहा है आइसो बार, मतलब जिस एरिया में इक्वल प्रेशर होगा वहां पर वर्ड यूज होगा आइसो बार। इक्वल प्रेशर मतलब आइसो बार। ध्यान से सुनिए, बिकॉज आई विल बी आस्किंग यू दिस क्वेश्चंस विद इन अ मिनट। आइसोथर्म, थर्म का मतलब, आइसो मतलब इक्वल है, लाइंस कनेक्टिंग इक्वल, कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल, यहां तक एक ही चीज है। तो पहले आया आइसो बार, तो अब हम आइसो बार को मार्क कर देते हैं। आई एम चेंजिंग द कलर सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज ये आइसो बार है। और आइसो बार क्या मेजर करता है? इक्वल एयर प्रेशर। तो फिर आइसोथर्म क्या मेजर करता है? आइसोथर्म जो है वो मेजर करता है इक्वल टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर की लाइन है एक मैप पे बनी हुई है तो उसे थर्म बोलेंगे। एक मैप पे अगर प्रेशर की लाइन बनी हुई है तो उसे आइसो बार बोलेंगे। आइसो हाइट्स, अब आइसो हाइट्स वर्ड का जो मीनिंग है वो कह रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। तो एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी रेनफॉल हो रही है, दैट इज आइसो हाइट। फिर आता है आइसो हेल्स। तो आइसो हेल्स वर्ड का जो मीनिंग है वो कह रहा है इक्वल सनशाइन। तो अगर आइसो हेल्स आएगा तो अगर आप इतना सा भी बता देंगे कि इक्वल सनशाइन। आइसोनेप्स, आइसोनेप्स का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ क्लाउड कवर। यहां पर आपने इतना समझ लिया। ये देखिए, ये टेम्परेचर तो हो नहीं सकता क्योंकि टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो ये टेम्परेचर नहीं होता, ये होता है प्रेशर। ये जो मैप पे इस समय दिख रहा है ये टेम्परेचर की लाइन नहीं दिख रही है। और अगर आप कहें कि सर आपको कैसे पता, तो यहां पर ये जो चीज है पर्टिकुलर इंडेक्स जिसे हम कहते हैं उसमें ये सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और ये तो हमें वैसे ही पता लगता है कि देखो अब आप कहो कि सर कैसे पता लगा आपको, तो ये देखो 10008 MB लिखा है। वापस जाओ, तो जो टेम्परेचर होता है वो तो MB में मेजर नहीं होता, वो तो डिग्री सेल्सियस में मेजर होता है या फ़ारेनहाइट में होता है ना। तो MB का मतलब होता है मिली बार। तो मिली बार में प्रेशर मेजर होता है। तो इसका मतलब ये जो लाइनें हैं जितनी भी मैप पे बनी हुई हैं ये प्रेशर को मेजर करती हैं। पहला क्वेश्चन आंसर्ड। क्योंकि क्या होता है कि वाइवा में यही आपको मैप दे दिया जाएगा बेटा, और उस मैप पे आपको यू कैन सी दिस 1008 MB रिटन हियर MB। अब वो हर जगह पे MB नहीं लिखेगा, क्योंकि अगर हर जगह पे MB लिखेगा तो वो मैप इतना क्लस्टर्ड हो जाएगा। तो इसलिए जहां पर उसको जगह मिली उसने एक पर्टिकुलर जगह पे लिख दिया MB। तो सबसे ज्यादा हाई MB जो था या मिली बार में प्रेशर जो था हाईएस्ट, यहां पर लिखा है हाई और यहां लिखा है 1010, तो मतलब ये हाईएस्ट है। एज सिंपल एज दिस। उसके बाद लोएस्ट कितना है, यहां पर लिखा है L। ये देखो, योर आईज शुड बी ऑन द स्क्रीन, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड।
एल जहां पर लिखा है वहां पर आप देखेंगे दैट पर्टिकुलर प्लेस इज 996 एल। एल मतलब लो वॉल्यूम, लोएस्ट यहां पर हुआ 996 पे, ठीक है, और हाईएस्ट हुआ 1010। तो यहां से यहां तक आपको देखा हाईएस्ट यहां पर पाया जा रहा है, लो यहां पर पाया जा रहा है। अब हमारे को एक लॉजिक पता है कि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये हमें पता ही है। तो विंड्स विल फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया, तो ये भी हमारे को पता है। अब किस स्पीड से विंड्स ब्लो करेंगी हम यहां पर देखते हैं कि कितना क्लाउड है। अब ये जो डॉट्स है ना, ये देखिए, ये ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो अगर ब्लैक डॉट को देखो तो वो कह रहा है 7/8, मतलब अगर 8 हिस्से में क्लाउड को देखें तो जो स्काई है वो 7/8 क्लाउड से कवर्ड है। अगर वो पूरा ही ओवरकास्ट है, मतलब सारे में क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, कुछ और दिख ही नहीं रहा, तो वो ओवरकास्ट कहलाता है। देखो यहां पर सारे में क्लाउड ही क्लाउड है, ये देखो ओवर क्लाउडेड है। 1/8 मतलब बहुत कम क्लाउड्स हैं, क्लाउड कवर है मगर बहुत ही कम है, मतलब 8 हिस्सों में से एक हिस्से में क्लाउड है, वो गुजरात में दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है। ये कौन सा समय है? ये मई है, मार्च अप्रैल मई में ऐसा हो रहा है कि यहां पर सबसे कम क्लाउड्स हैं, मगर दिल्ली के पास, ये दिल्ली के ऊपर आप यहां देखो पूरा ओवरकास्ट है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई यहां पर क्लाउड कैसे आ गए? आंसर आता है कि ये क्लाउड्स जो हैं यहां से हाईएस्ट इधर है, लोएस्ट इधर है। अब लोएस्ट की तरफ हवाएं घुसेंगी। अब जब हवाएं यहां पर लोएस्ट की ओर घुसती जाएंगी, क्योंकि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस पर्टिकुलर एरिया में जब विंड्स घुसेंगी तो आप यहां देखो ये सारे एरिया के पास मॉइस्चर बहुत है। क्यों? क्योंकि ये एक वाटर बॉडी है, तो जहां पर वाटर बॉडी है वहां पर प्रेजेंस ऑफ क्लाउड्स बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि लैंड एंड सी एक दूसरे के पास हैं। तो जहां पर पानी होगा और लैंड और वाटर पास पास होगा, वहां पर आप देखिए कि क्लाउड्स की प्रेजेंस भी होगी। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि क्लाउड की प्रेजेंस इस जगह पे ज्यादा है, और जितना हम दूर चले जाते हैं ऑन लैंड उतना अमाउंट ऑफ क्लाउडीनेस खत्म हो जाती है। और कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जैसे आप यहां देखो, यहां पर क्लाउड है ही नहीं, राइट? सो दिस थिंग्स वी कैन अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अब हम आगे इसको स्टडी करते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने इसमें दिखाई हैं, राइट? तो अब इसको आगे फर्दर वो क्या कह रहा है कि एक तो विंड डायरेक्शन दिखाया जाता है, कि मैप के अंदर क्या दिखाया जाता है? विंड। ये आपको समझ में आ गया कि क्लाउड्स कितने हैं, और क्या समझ में आ गया कि अब क्या होगा कि पेपर में एज एन एग्जामिनर मैं ये आपको पेज इतना दिखा दूंगा, ठीक है? ये जो नीचे का पार्ट है इसको कवर कर दिया जाएगा, तो आपको ये नीचे वाला पार्ट को रट लेना है। फिर मैं कहूंगा यहां पर कितना क्लाउड है बेटा इस जगह पे, तो आपको ये 7/8% ऑफ क्लाउड याद होना चाहिए, है ना? तभी तो आप मैप को इंटरप्रेट कर पाएंगे ना। आप ज्योग्राफर कैसे बने अगर आपको मैप ही नहीं इंटरप्रेट करना आ रहा, है ना? तो इस चीज को हम यहां पर समझेंगे। उसके बाद ये तो हमारा क्लाउड कवर हो गया। अब वो कह रहा है वेदर के सिंबल्स क्या है। एक जगह पे रेन हो रही है तो ऐसा डॉट दिखा देंगे। अगर उस जगह पे अब मई है, मई में तो कोई क्लाउड्स स्नोफॉल हो नहीं होगी, तो इसलिए यहां पर कोई क्लाउड स्नोफॉल दिख नहीं रही इस जगह पे, यहां पर तो ये स्नोफॉल भी नहीं दिख रही। और अगर कहीं पर बारिश हो रही होगी तब ये वाला साइन आपको दिखेगा, ठीक है? कैसी वहां पर बारिश हो रही है, क्या सिचुएशन है। अब जैसे यहां पर लिखा है हेज, अब ये हेज मैप में यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो यहां पर हेज पाई गई, मतलब उस पर्टिकुलर दिन। नाउ आई वांट यू टू सी, अब ये जनवरी का मैप है,
जनवरी के मैप में व्हाट एम आई एबल टू सी, आई एम एबल टू सी सम थिंग्स सच एज कि यहां पर सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है मई से। अब क्या डिफरेंस है, यहां पर लो प्रेशर यहां पर था, हाई प्रेशर यहां पर था। अगर हाई प्रेशर यहां था, लो प्रेशर यहां था, तो मई में लो प्रेशर की तरफ विंड्स फ्रॉम लैंड टू सी चलेंगी, क्योंकि विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो विंड्स विल मूव फ्रॉम लैंड टू सी। और यहां पर क्या होगा इस जनवरी में, अब यहां देखो प्रेशर कितना है 1024, और यहां देखो 112, तो यहां पर भी हायर प्रेशर 24 ज्यादा है और 12 जो है कम है, तो यहां पर प्रेशर फिर भी लो ही है और यहां पर प्रेशर हाई है। तो अगेन विंड्स विल बी मूविंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, क्योंकि विंड्स का डायरेक्शन जो है वो, और इसमें उसने फिर क्लाउडीनेस दिखाई है। अब क्लाउड के साथ आप एक चीज नोटिस करेंगे कि क्लाउड के साथ दो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, ये जो क्लाउड के नीचे डॉट दिख रहा है, लाइन दिख रही है, ये विंड स्पीड है। अगर आप वापस जाएं तो ये देखिए ये विंड स्पीड है। अगर काम है तो एक है ना, अगर लाइट ब्रीज है तो ये मतलब जो इसका डंडा है वो ज्यादा बड़ा है पहले वाले से, और अगर और भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ गई तो दो हो गए वो। अगर दोनों की स्पीड ज्यादा है तो मॉडरेट होगा, और कितनी स्पीड से चल रही है वो यहां पर लिखा हुआ है। तो आप इस पर्टिकुलर फिगर में देखिए विंड स्पीड क्या है, आप यहां देख सकते हैं कि इसमें यहां पर इसमें दो लगे हुए हैं, एफ बना हुआ है, और यहां पर एफ का मतलब है 12 से 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे विंड चल रही है। समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एयर की स्पीड जो है वो आपको इसी जो क्लाउडीनेस का कवर है उसी के अंदर विंड स्पीड भी दिखा देते हैं। तो जहां जहां पर विंड स्पीड दिखाई है उसी को हम विंड स्पीड मानेंगे। ये उसने बताया, इस सिंबल का उसने बोला 5 नॉट्स, इसको बोला 10 नॉट्स, और इसको बोला 50 नॉट्स। 50 नॉट्स मतलब काफी तेज हवाएं चल रही हैं। मुझे मगर मैप में 50 नॉट्स की विंड चलती कहीं दिख नहीं रही है मुझको। 5 नॉट्स की तो स्पीड दिख रही है, जैसे ये भी 5 नॉट है, ये भी 5 नॉट है। अब ये जो है ये कितनी स्पीड है, एफ। तो एफ की स्पीड आप चेक कर लीजिए अपने इस फिगर में, और यहां देखिए एफ का मतलब है जेंटल ब्रीज 12 to 19 knots. So this much is understood.